Good morning to all. Tej Anandam. My name is Dheeraj Jain, and I am Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SIRT Bhopal. Today, I am going to start the topic and deliver the topic of solution of LPP by graphical method. This is very important topic in 7th semester Mechanical Engineering student, and it is very beneficial topic for all the organization, all the companies, and as well as engineering. Also, it is a very important topic in MBA sector, management sector also, and the subject is operational research and supply chain management. So now explaining this topic very easily. So first of all, we know that what is LPP. The full form of LPP is linear programming problem. Basically, it is a graphical representation to solve linear programming problem by visualizing the problem on a graph. This method involves plotting the constraints and the objective function on a coordinate plane to find the feasible reason or optimal reason. Basically, the meaning of this LPP is simple as finding the maximum profit और फाइंडिंग द लोअर कॉस्ट. दो पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हैं, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो उस कंपनी को या उसकी कॉस्ट कम से कम लगे और बेस्ट फिजिबल रीजन निकल के आ जाए. तो पर्टिकुलर एक्स और वाई एक्सिस पर आप इस पूरे ग्राफ को प्लॉट करेंगे और वहां से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज a solution of particular problem. Here, this is a representation of particular problem. We are taking two variable problem of LPP. So now we will discuss about steps for graphical method. So there are very few steps to solve the graphical method. The number one step is formulate the problem. Moving forward the slide, we take an example also and explain the example with solution. So first we will discuss about steps for graphical method. The first step is formulate the problem for objective and constraint function. Then the another step is frame the graph. Basically, we find out some constraints, and with the help of constraint, we frame the graph. One variable on horizontal and other is vertical axis. Then plot the constraint. Inequality, 2b as inequality. Give arbitrary value to variables and plot the point on graph. So basically, उस पर्टिकुलर एक्स और वाई एक्सिस पर आप उन सारे पॉइंट को प्लॉट करते हो, उसकी हेल्प से ग्राफ बनता है. देन प्लॉट द ग्राफ. देन द स्टेप इज आउटलाइन द सॉल्यूशन एरिया. उन पर्टिकुलर सारे कंस्ट्रेंट्स को आउटलाइन करते हैं और उसमें से फिजिबल रीजन, मोस्ट ऑप्टिमम रीजन आप उसमें से निकाल के अपन फाइंड आउट करते हैं और पर्टिकुलर आंसर निकाल पाते हैं. तो मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, that this is the example of LP. So now I read the example, and in this example we find out the what is constraints, what is the optimum value, optimum solution. In this question, what we ask, maximum profit or minimum cost. So I read this example, then we solve this question in next slide. So the example is a small scale electrical regulator industry accompanied by a skilled man or woman worker. So there is two variable, man or woman, but number of workers can't exceed 11. This is a condition in this question. The worker cannot be exceeded in 11. Salary will not more than 60,000 per month. सैलरी का भी कंस्ट्रेंट्स लगा के दे दिया कि 60,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए. मेल वर्कर आर पेड 6,000 per month and female workers are paid 5,000 per month. So this is also a constraint value condition for solution this question. 6,000 per month male worker, 5,000 per month female worker. Data collected for the performance. Now the data indicated male workers contribute. So this is a maximum optimum solution is maximum Z is condition is 10,000 per month, and the female member contributes
8,500 per month. So what we ask in this question, determine number of males and females to be employed in order to maximize total return. So in this question what we ask, maximize total return, मतलब मैक्सिमम जेड आपको निकाल के देना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है उस ग्राफ में ये आप देखने वाले। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टेप वन, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज maximum z equal to 10,000 x plus 8,500 y. So in the previous slide, what we written in this question, contribute 10,000 per month and female 8,500 per month. ये कंडीशन आपको दी हुई थी। तो मैक्सिमम जेड आपका क्या हो जाएगा, 10,000 x प्लस 8,500 बाय। एंड द कंस्टेंट्स क्या क्या दिए थे आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे कैसे इक्वेशन बन रही है। सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 11, और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने क्लियर बोला था, बट नंबर ऑफ वर्कर कैन नॉट बी एक्सीडेड 11। सो कंस्टेंट कंडीशन इज दिस। एंड सेकंड इक्वेशन इज 6,000 पर मंथ मेल सैलरी है और 5,000 पर मंथ वर्कर की सैलरी रखनी है। तो 6,000 एक्स प्लस 5,000 बाय लेस देन इक्वल टू, और दोनों की पूरी टोटल मिला के 60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 60,000 मैंने यहाँ इक्वेशन टू बन। तो टू इक्वेशन आपकी बन गई। इक्वेशन वन इज एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 11 एंड 6,000 एक्स प्लस 5,000 वाई लेस देन इक्वल टू 60,000। सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप, फ्रेम द ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे we can put the number of males, and on the y-axis we can put the number of male worker and female worker. Now the step third is plot the constraint. To plot the constraint, we will opt an arbitrary value to be variable. तो दो इक्वेशन आपने ले ली थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया और दूसरी इक्वेशन को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, पर्टिकुलर दोनों इक्वेशन में एक एक वैल्यू को, एक एक कंस्टेंट, एक एक एक्सिस को आप जीरो पुट करते हैं और दूसरी वैल्यू निकालते हैं। तो जब मैंने इक्वेशन वन में एक्स को के स्थान पर जीरो पुट किया तो बाय 11 आ गया, और बाय के पर्टिकुलर प्लेस पर जीरो पुट किया तो एक्स 11 आ गया। ऐसी दूसरी इक्वेशन में भी देख लेंगे, मैंने 1000 कॉमन ले लिया इधर पे, तो 6x प्लस 5y इक्वल टू 60 बन गया। एक्स की जगह जीरो पुट किया तो y की वैल्यू 12 आ गई, एंड y की जगह जीरो पुट किया तो x की वैल्यू 10 आ गई। ये सॉल्व कर इजिली कर सकते। ग्राफिकल मेथड का स्टेप यही होता है। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फोर, प्लॉट द ग्राफ। तो ये जो वैल्यू आपको मिली है, अब इनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो दो पर्टिकुलर ग्राफ मैंने इसमें दिखाए हैं, लेकिन एक सिंगल ग्राफ इसको आगे की स्लाइड में आपको दिख जाएगा, सिंगल ग्राफ ही बनता है। तो ग्राफ को समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग दिखाया है कि पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 11। तो इसमें जो भी पॉइंट बने थे 0 11 और 11 0, तो जीरो पहली कंडीशन में 0 11 आया तो वो आपको बाय पे दिख जाएगा। फिर आपको सेकंड कंडीशन में 11 एक्स की वैल्यू है, बाय 0 की वैल्यू है, तो एक लाइन ये ड्रॉ कर दी दोनों पॉइंट को पुट करके। एंड इन द सेम इन सेकंड इक्वेशन 6x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पर भी 0 12 और 10 0 की दो पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिए, और इनको मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया। स्ट्रेट लाइन मैंने इन दोनों पॉइंट को पर्टिकुलर मिलाते हुए ड्रॉ कर दी। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में क्या देख रहे हैं कि फाइंड द ऑप्टिमम फिजिबल रीजन। अब मुझे ऑप्टिमम फिजिबल रीजन निकालना है कि पर्टिकुलर जो कॉमन रीजन है जो दोनों लाइन से होता हुआ जा रहा है, वो पर्टिकुलर रीजन मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मैंने जब दोनों लाइन को इस पर्टिकुलर ग्राफ पे प्लॉट किया, एक्स प्लस वाई 11 वाली और 5x प्लस 6y इक्वल टू 60 वाली दोनों लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल रहा है 5,6। ये कैसे मिल गया, क्योंकि जब दोनों लाइन को मैंने ड्रॉ किया तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वहां मैंने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसी के सामने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जैसे ये पता पड़ जाए कि यहाँ ऑप्टिमल रीजन, पर्टिकुलर ऑप्टिमल फिजिबल पॉइंट कौन कौन से बनने वाले हैं। तो एक मेरे एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा, एक मेरा वाई एक्सिस पे मिल जाएगा, एक 0,0 हो गया और एक 5,6 हो गया। आप इन सब पर्टिकुलर वैल्यू को मैक्सिमम जेड जो आपने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 10,000 एक्स प्लस 8,500 बाय में, इसमें सारे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो ये मेरे पॉइंट मिले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहे हैं, मार्क ऑल ऑप्टिमल पॉइंट। सो आई कैन मार्क द 0,0, आई कैन मार्क द 10,0, आई कैन मार्क
5,6 and in this point I can mark 0,11. तो हर पॉइंट पे आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है। अब इन दोनों वैल्यू को मैक्सिमम जेड में पुट करेंगे और ऑप्टिमल रीजन और मैक्सिमम ऑप्टिमल रीजन फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इन द स्टेप 7 सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड सॉल्यूशन। तो सारे जो चारों पॉइंट मिले थे 0,0, 0,11, 5,6, 10,0, इन सबको मैं जेड इक्वल टू 10,000 एक्स प्लस 8,500 बाय में पुट करता जाऊंगा। यहाँ 0 0 पुट किया, यहाँ 0,11 किया, यहाँ 5 × 6 किया, यहाँ 10 और 0 किया। तो सारी जो वैल्यू मुझे मिल रही है इसमें मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, क्योंकि प्रॉफिट पूछा है। अगर इस इन केस क्वेश्चन में पूछा होता कि आपको मिनिमम कॉस्ट कहाँ लग रही है पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे बताना होता, तो मैं सबसे मिनिमम वैल्यू बताता है, 0,0 को छोड़ के। तो 93,500 हो जाती है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम जेड पूछा है, तो वो कौन से पॉइंट पर आ रही है, 5,6 पर, 1,01,000। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है 5,6, ये आपके नंबर ऑफ मेल वर्कर आपको 5 चाहिए क्योंकि एक्स पे लिया था और बाय पे फीमेल को अपने सपोज किया था। तो 6 वर्कर फीमेल और 5 वर्कर मेल अगर होंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 1,01,000 का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द graphical method. Thank you very much. I hope you understand this graphical method, and I also send some question related to the graphical method. You can solve it, and if any doubts, so ask me anytime in the college SIRT. Thank you very much.